कितने लोगों ने अंधकार के समय को अपने जीवन में देखा है जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जब यीशु मसीह को स्वर्गदूत की जरूरत पड़ी कि वो उसको दृढ़ करे, उसको मजबूत करे, तो हम और आपको उससे कितनी ज्यादा अधिक जरूरत है। आज भी हम देखते हैं कई लोग दुखी हैं, घबराए हुए, डरे हुए हैं, क्योंकि ये समय अंधकार का है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, तीसरे दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और अंधकार के ऊपर विजयी हुआ। क्या मैं नहीं जानता वो पत्थर आपके जीवन के लिए क्या है, लेकिन जिस दिन वो समय खत्म होगा, परमेश्वर का दूत आएगा, उस पत्थर को जिसको कोई नहीं हटा सकता, परमेश्वर का दूत आके उस पत्थर को हिलाएगा और उस पत्थर के ऊपर बैठ जाएगा। दो सॉल्यूशन, एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। The solution to all your problems is never physical, it is always spiritual. और क्या हुआ? 3 दिन उपवास और प्रार्थना के बाद जब एस्तर गई, एस्तर को देखते साथ ही क्या हुआ? The king extended his scepter. अपने राजदंड को बढ़ाया और बोला, बोल मेरी क्या इच्छा है। जो हमारे विरोध में है वो हमारे साथ में है। वो कहाँ गए? यहूदियों की मदद करने। कौन? गवर्नमेंट ऑफिशियल। Yes, there was one. What happened? Through fasting and prayer, that hour of darkness got light. Please like, subscribe and share this video. So today the scripture has been read in your midst, and the scripture was taken from Luke chapter 22 and verse 53. It has already been read before you, and I want to ask you, how many of you have experienced an hour of darkness in your life? कितने लोगों ने अंधकार के समय को अपने जीवन में देखा है जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है? Can you just raise your hands? Where you think you are praying, you are fasting, and you are doing so many things, but nothing is happening, and the hour of darkness is prevailing. अंधकार का समय हावी है. And that is what exactly happened with our Lord and Savior Jesus Christ. The night he was taken away by the soldiers, he said a statement in Luke chapter 22 verse 53. I'll read, and wherever necessary I'll request Sharon to read for me. Right now I'll read Luke chapter 22 verse 53. Every day I was with you in the temple courts, and you did not lay a hand on me. But this is your hour when darkness reigns. In the NASB translation, New American Standard Bible Translation, it says, this is your hour and the power of darkness is yours. You know, there is a time when darkness prevails. And it prevailed over who? The Lord Jesus Christ also. And therefore, Jesus Christ says, this is your hour, because the power of darkness is yours. Sometimes our enemy will always be above us, and whatever we do, we will only face struggles. We will not be able to overpower our enemy. Why? Because there is a time where the power of darkness is allowed to prevail. It's not that it can prevail, but sometimes God in his sovereign judgment allows. कई बार परमेश्वर अपने अधिकार में नियुक्त करता है कि अंधकार हमारे ऊपर हावी हो सके. And there are many times where such a thing has happened. But in that hour, we need the support of angels. हमें किसकी जरूरत है? स्वर्गदूतों की जरूरत है. क्योंकि यदि आप उसी चैप्टर के 22 वर्स 43 में पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं,
an angel from heaven appeared to him and strengthened him. At the Mount of Olives, while Jesus was praying, he was in great agony. वो बहुत दुख में था और उसको दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया. Who came to strengthen Jesus? An angel. In that darkness hour, the Lord heaven, our Father, sent an angel to strengthen our Lord Jesus Christ. For us, how much more do we need the support of angelic ministry? जब यीशु मसीह को स्वर्गदूत की जरूरत पड़ी कि वो उसको दृढ़ करे, उसको मजबूत करे, तो हम और आपको उससे कितनी ज्यादा अधिक जरूरत है कि स्वर्गदूत हमें क्या करे, मिनिस्टर करे और हमें मजबूत करे और हमें स्ट्रेंथन करे. We need to pray, Lord, send your angels to strengthen me. You know, when Elijah ran from his life, जब एलिया जेजबील से डर के भागा, तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उसको कुछ रोटी भी दी और कहा, खा क्योंकि तेरी यात्रा लंबी है. Elijah was assisted in his hour of darkness because he was running for his life from Jezebel, because Jezebel was after him to kill him. And the Lord sent an angel. परमेश्वर ने एक दूत को भेजा किसकी मदद करने के लिए? एलिजा की, एलिया की. और उसने क्या करा? एलिजा को दृढ़ किया, मजबूत किया. In the same way, God is ready to send His angels to assist us in our hour of darkness. हमारे अंधकार के समय में, जब अंधकार हमारे ऊपर हावी है, परमेश्वर क्या करता है? हमको अकेला नहीं छोड़ देता. He does not leave us alone, but He sends His angels to strengthen us. हमें मजबूत और दृढ़ अपने विश्वास में करे रखने के लिए वो हमें क्या करता है? स्वर्गदूतों को भेजता है. I'll request Sharon to please read Hebrew chapter 1 verse 14. Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Yes, are not all angels ministering spirit? कौन है angels? Ministering spirits. और क्या है ये? Who are sent to serve those who will inherit salvation. Angels कौन है? एक ministering spirit है जो किन को दी जाती है? जो स्वर्गीय राज के वारिस है. कौन है स्वर्गीय राज के वारिस? हम सब जिन्होंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है. प्रियो, we are assigned an angelic help. Do we ask? क्या हमने कभी प्रार्थना करी है? कितने लोगों ने प्रार्थना करी है, प्रभु अपने दूत को भेज मेरी मदद के लिए? Has anybody prayed like this? I have prayed. Because we do not know that angels are ministering spirit. मदद करने वाली आत्माएं हैं. किन के लिए है? परमेश्वर के लोगों के लिए. And sometimes we think we cannot pray like that. No. जब यीशु मसीह को मिला, जब एलिया प्रॉफिट उसको मिला, तो हमें भी जरूरत है. We also need an angelic support. जो क्या करे? हमारी मदद करे. क्योंकि अंधकार जब हमारे ऊपर हावी होगा, हम अकेले उससे लड़ नहीं पाएंगे. और उस समय कौन हमारी मदद करने के लिए आएगा? स्वर्गदूत. जैसे यीशु मसीह के लिए आया, एलिया के लिए आया, वो स्वर्गदूत निश्चित मेरे और आपके लिए आएगा. All you need to say is, Lord, send your angel. प्रभु अपने दूत को भेजे कि वो मेरी मदद करे. प्रियो, in this hour of darkness, क्या हुआ? जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, when Jesus was arrested, his disciples abandoned him. उसके चेलों ने क्या करा? उसको छोड़ के वो छिप गए. और यीशु मसीह ने पहले से ही उनको कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि तुम सब क्या होगे? मुझे छोड़ के चले जाओगे. And if we read John chapter 16 verse 20, यदि हम निकाले यूहन्ना 16:20, Sharon, can you read for us?
Very truly, I tell you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will turn to joy. थैंक यू। क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम विलाप करोगे और दुखी होगे और संसार आनंद मनाएगा। You know, in our times you will see that the world is rejoicing and we are crying. And you know what I am speaking about. आज के अगर आप संदर्भ को देखो, if you see today what is happening, the world is rejoicing, but the people of God are mourning, are weeping. They are hiding because this is the hour of darkness. लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर रुक नहीं गया। आगे वो क्या कहता है? He says, but your grief will turn to joy. तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। When Jesus died, the disciples were hidden in the rooms. और डिसाइपल्स घबराए हुए रो रहे थे और संसार विजय बना रहा था कि यीशु मसीह को हमने मार दिया, और संसार आनंदित था लेकिन चेले दुखी थे। आज भी हम देखते हैं कई लोग दुखी हैं, घबराए हुए, डरे हुए हैं, क्योंकि ये समय अंधकार का है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, तीसरे दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और अंधकार के ऊपर विजयी हुआ। He rose and became victorious over that hour of darkness. And therefore he said, an hour will come that your grief will turn to joy. तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। I want to say to all of you, if you are going through a dark hour, Jesus is saying, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। This hour of darkness will not prevail. वो हमेशा के लिए नहीं है। It has been allowed, but a time is coming जब जैसे यीशु मसीह ने अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त करी, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए भी विजय को लेकर आऊंगा ताकि तुम क्या कर सको, अंधकार के ऊपर विजय को प्राप्त कर सको। The hour of darkness will come to, and what happened on the Sunday morning? क्या हुआ? यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर विजय हुआ। और वहां क्या लिखा है? एक स्वर्गदूत आया, उसने पत्थर को हिलाया और पत्थर के ऊपर बैठ गया। यू अंडरस्टैंड? सो ब्यूटीफुल। पत्थर को हिलाया, हटाया और पत्थर के ऊपर बैठ गया। मैं नहीं जानता वो पत्थर आपके जीवन के लिए क्या है, लेकिन जिस दिन वो समय खत्म होगा, परमेश्वर का दूत आएगा, उस पत्थर को जिसको कोई नहीं हटा सकता, परमेश्वर का दूत आके उस पत्थर को हिलाएगा और उस पत्थर के ऊपर बैठ जाएगा। He is going to remove that great stone in your life which nobody can remove, and he will sit on that throne. उस पत्थर के ऊपर जिसको कोई बंद नहीं कर पाएगा। Dear friends, dear students, how can we prevail in this hour of darkness? I'll take you to a story. मैं आपको एक कहानी में लेके जाऊंगा जहां पर एक ऐसा अंधकार का समय आया कि परमेश्वर के लोग भय में चले गए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें विक्ट्री दी। और कैसे विक्ट्री दी? we'll see. We'll go into a story where the people of God lived in fear because an hour of darkness was upon them, and how God gave them victory, and what was the key to that victory. We are going to see through a story which is found in the book of Esther. हम एस्तर की किताब में जाएंगे और हामान के बारे में एक कहानी है। And we'll read from the book of Esther, chapter 3, verse 1 and 2. Esther, chapter 3, verse 1 and 2. After these events, King Xerxes honored Haman, son of Hammedatha, the Agagite, elevating him and giving him a seat of honor higher than that of all the other nobles. All the royal officials at the king's gate knelt down and paid honor to Haman, for the king had commanded this concerning him, but Mordecai would not kneel down or pay him honor. Thank you. So, यहां पर कौन है? एक व्यक्ति है हामान, जो किसका दुश्मन है? यहूदियों का। He is a person named Haman who is an enemy of the Jew. Why he is an enemy of the Jew?
because the king has exalted Haman to a very high place and he thinks that everybody should bow before him. Now that bow was not simple bow, but it was like a worship of a human being. And the Jews know that worshipping any person is against the teachings or the commandments of our God Yahweh. And therefore, most of the Jews, and particularly Mordecai, never bow down. मुर्दकई कभी भी उसके सामने झुका नहीं, क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है. और इस वजह से वो बहुत क्रोधित हुआ और वो क्या करता है, एक प्लान बनाता है. वर्स 6 में मैं पढ़ दे रहा हूं आपके लिए. Yet he learned who Mordecai people were. He scorned the idea of killing not only Mordecai. Instead, Haman looked for a way to destroy all Mordecai people, the Jews. प्रॉब्लम किससे थी? खाली मुर्दकई से. लेकिन हमान ने क्या कहा, नहीं मैं खाली इसको नहीं मारूंगा, इसके सारे लोगों को मारूंगा. Haman made a plan not only to destroy Mordecai, but every people who is called the people of Mordecai, that is the Jews. So he made a plot. And he went to the king and he convinced the king to issue a decree, एक ऐसी राज आज्ञा निकाले जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, कि जो लोग राजा के विरोध में उनको मार डाला जाए. And in verse 13, I'll read for you. The word of the Lord says, dispatches were sent by couriers to all kings' provinces with the order to destroy, kill, annihilate all Jews, young and old, women and children, on a single day, the 13th of the 12th month, the month of Adar, to plunder their goods. 13 तारीख नियुक्त की गई कि इस दिन क्या होगा, परमेश्वर के लोगों को मारा जाएगा, उनको संपत्ति को छीन लिया जाएगा. सोचिए, अगर एक डे डिसाइड हो जाए कि इस दिन हम लोगों को मारा जाए, परमेश्वर के लोगों को, क्या बीतेगा उन पर? An hour of darkness, एक अंधकार का समय, भय का समय, क्योंकि उनको मृत्यु दिख रही है. They can see death coming their way. क्या करेंगे आप? What will you do? There are two ways. मैं ऐसा सोचता हूं, मे बी आपके पास और सोल्यूशन हो. मैं सोचता हूं या तो आप लड़ोगे या आप किसी को पकड़ लोगे जो आपके लिए लड़ ले. राइट? यू विल फाइंड अलाइज और उनके साथ आप लड़ लो. एंड द सेकेंड वे इज द वे ऑफ एस्तर एंड मोर्दकई. बताएंगे उनका तरीका क्या था? यस यस, थैंक यू अंकित. दे फास्टेड एंड प्रेड. आपके पास दो तरीके हैं. एक तरीका शारीरिक है, जहां पर आप क्या करो, या तो आप बलवान हो तो आप खुद लड़ो, या अगर आप नहीं लड़ सकते तो आप किसी को हायर कर लोगे या किसी से अलायंस सॉर्ट कर लोगे कि वो आपके लिए लड़े. इजराइलियों ने कई बार अलायंस को सॉर्ट किया कि वो उनके लिए लड़े, और परमेश्वर को सॉर्ट नहीं किया. इसीलिए परमेश्वर इजराइलियों से हमेशा नाराज रहा. एंड द अदर वे, विच इज द स्पिरिचुअल वे, इज टू गो इनटू फास्टिंग एंड प्रेयर. ओके, दो सोल्यूशन, एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल. मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए. द सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स इज नेवर फिजिकल, इट इज ऑलवेज स्पिरिचुअल. फिर से बोल रहा हूं, द सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स इज नेवर फिजिकल, इट इज स्पिरिचुअल. आई से, the solution to all the problems of our university is not physical, it is spiritual. If you know this has happened in the past, और अगर आप इतिहास को जानते हैं, this university revived. Why? Because there was a great spiritual revival. And when that spiritual revival came, ये यूनिवर्सिटी जो एक बहुत ही कठिन समय से जा रही थी, उठकर आज जो जहां पर है वहां पर पहुंची. And what we should do is we should also fast and pray. I thank God for the students of United Prayer Fellowship. On Friday, they fasted and prayed for the university. Kaun kaun the? Can you raise your hands? UPF students, thank you. God bless you. क्योंकि उन्होंने क्या करा? They fasted and prayed for their university.
सी आर प्रॉब्लम्स, हमारी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? घुटनों पर. When we come to our knees, what happens? Every problem is solved. But the problem is, we think, या हमको बोला जाता है नहीं आपको भी कुछ करना है, आप भी मेहनत करो. You see, the biggest lie is the devil teaches you आपको भी कुछ करना है. कितने लोगों ने सीखा है हमें भी कुछ करना है, तभी होगा. बचपन से मैं सीखता आया हूं, तुम जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा. बाइबल में कहां लिखा है ऐसा? बताइए मुझे. परमेश्वर ने क्या कहा? स्टैंड स्टिल एंड सी द डिलीवरेंस ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर ने क्या कहा? चुपचाप खड़े हो जा और मेरे उद्धार के काम को देख. See what happens when we try to solve our problems, we always do the wrong direction. जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना चाहते हैं, we always take the wrong direction, and then the problem is never solved. And then we'll say, प्रभु हमने इतना काम किया, हमने इतनी मेहनत करी, हमने इतनी प्रार्थना करी, लेकिन सॉल्यूशन हुआ नहीं. परमेश्वर कहेगा तूने क्या करा? तूने अपनी समझ का सहारा लिया. अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है. तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग लगाएगा. अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु इंग्लिश में लिखा है बट इन ऑल योर वेज. क्या लिखा है? 1 वे, 2 वे, 3 वे, हाउ मेनी वेज? ऑल. इन ऑल योर वेज ट्रस्ट इन द लॉर्ड. हर एक कार्य में परमेश्वर पर भरोसा करना है. आई वॉन्ट टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स हाउ पीपल गॉट विक्ट्री थ्रू फास्टिंग एंड प्रेयर. अगर आप योना की कहानी जानते हैं, गॉड सेंट योना टू अ सिटी कॉल्ड निनवे. पूरी कहानी मालूम है, आई विल नॉट गो इनटू द होल स्टोरी, बट हाउ डिड दैट पीपल सेव देयर लाइव्स? उन्होंने कैसे अपने जीवन को बचाया? फ्रॉम द किंग टू द सर्वेंट इवन टू द एनिमल, सबने क्या करा? दे फास्टेड. उन्होंने उपवास करी, और क्या हुआ? परमेश्वर क्रोध से फिर गया. परमेश्वर अपने क्रोध से फिर गया और उनको नाश नहीं किया. हाउ डिड दे गेट विक्ट्री? थ्रू फास्टिंग एंड प्रेयर. अनदर इंसिडेंट, व्हेन अ लार्ज आर्मी, एक बड़ी सेना, आराम की सेना यहोशापात के विरोध में आई. वी विल जस्ट लाइक टू रीड 2 Chronicles chapter 20 verse 3 and 4. Alarmed Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek him. Thank you. अब एक बड़ी आर्मी, बिग आर्मी कम्स अगेंस्ट जेहोशापात, और वो क्या करता है? लड़ने के लिए क्या करता है? वो सारे लोगों को बुलाता है, कहता है लेट्स फास्ट एंड प्रे. पूरी प्रजा को बुलाता है और कहता है कि हम क्या करेंगे? उपवास और प्रार्थना. और क्या हुआ? लड़े वो? नहीं लड़े. जब वो गए तो क्या मिला? केवल प्लंडर. एक व्यक्ति नहीं मिला जिससे वो लड़े. Why? Because they fasted and prayed. क्या हुआ? सारे शत्रु कहां गए? भाग गए. क्यों? परमेश्वर ने उन्हें ऐसा कंफ्यूज किया, ऐसा डराया कि रातों रात भाग गए. Your enemy will run when you will fast and pray. एक ऐसा कंफ्यूजन को परमेश्वर आपके एनिमी के विरोध में भेजेगा कि वो क्या हो जाएगा? रातों रात भाग जाएगा. हाउ? थ्रू फास्टिंग एंड प्रेइंग. जेहोशापात को एक बड़ी विजय मिली. जेहोशापात गॉट अ ग्रेट विक्ट्री. हाउ? नॉट विथ अ स्वॉर्ड बट थ्रू फास्टिंग एंड प्रेयर. आपको एक बड़ी विजय चाहिए? Go into fasting and prayer. You will get a great victory. I can guarantee you that. But when you fast in a way that it honors God. एक ऐसा उपवास रखिए जो परमेश्वर को आदर दे. ओके? एक और स्टोरी, एजरा.
एजरा बहुत सारा सामान लेकर, ये वो समय है जब बेबीलोन से वापस ये लोग यरूशलेम की ओर आ रहे थे, और एजरा ने बड़ी तारीफ करी, मेरा परमेश्वर ऐसा है जो हमें बचाता और ये और वो। तो राजा ने क्या करा, ठीक है भाई तुम इतनी तारीफ कर रहे हो, सारा सोना चांदी सब लेके चले जाओ। अब जर्नी बड़ी लंबी है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एंड इन ओल्डन टाइम्स देयर वर डेकॉइट्स एंड रॉबर्स हु वुड कम एंड लूट पीपल। अब एजरा के सामने एक बड़ा चैलेंज कि मैं इतने सारे लोगों को एंड सिल्वर एंड गोल्ड एंड सो मेनी आर्टिकल्स आई एम टेकिंग विथ मी, हु विल प्रोटेक्ट अस, हमारी रक्षा कौन करेगा? प्लीज रीड एजरा चैप्टर 8 वर्स 21 एंड 22. There by the Ahava canal I proclaimed a fast, so that we might humble ourselves before our God and ask Him for a safe journey for us and for our children. With all our possessions, I was ashamed to ask the king for soldiers and horsemen to protect us from enemies on the road, because we had told the king, the gracious hand of our God is on everyone who looks to Him, but His great anger is against all who forsake Him. Thank you. Now, Ezra has already spoken to the king and said, हमारा परमेश्वर क्या है? He is gracious and He will protect us. But the journey is long and there are threats throughout the journey. Who will protect? अब वो राजा से soldiers नहीं मांग सकता. What he does? He calls everyone, okay? और वो आफा कैनाल के बगल में सबको बुलाता है, and he says, proclaim a fast and humble yourselves and pray that our Lord will grant us a safe journey. और क्या हुआ? जब इन लोगों ने उपवास और प्रार्थना करी, क्या हुआ? वो सुरक्षित बेबीलोन से यरूशलेम तक पहुंचने पाए. If your journey is long and you think there are robbers who can rob you, like there was for Ezra, pray, fast and pray. क्या हुआ? A safe journey was granted. एक सुरक्षित यात्रा परमेश्वर ने उनको दी कि वो बेबीलोन से कहां पहुंच गए? यरूशलेम तक सुरक्षित पहुंच गए. और सिमिलर सिचुएशन हम देखते हैं एस्तर और मोर्देकै के लिए. अगर हम एस्तर के चैप्टर में वापस आए, एस्तर ने क्या कहा? एस्तर ने 15वीं आयत, चैप्टर 4 वर्स 15, आई विल रीड फॉर यू. वहां पे लिखा है, देन एस्टर सेंट दिस रिप्लाई टू मोर्देकै, go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat for 3 days, night or day, and I and my attendants will fast as you do. क्या कहा एस्तर ने? ये कहलवा भेजा मोर्देकै को कि मैं और मेरे अटेंडेंट्स फास्ट करेंगे 3 दिन. तुम अपने सारे लोगों को लो, तुम लोग भी क्या करो? 3 दिन उपवास करो. और उसके बाद मैं कहा जाऊंगी राजा के सामने. We know the story. राजा के सामने बिना परमिशन के नहीं जा सकते थे. And said, I will go. If I perish, I perish. और क्या हुआ? 3 दिन उपवास और प्रार्थना के बाद जब एस्तर गई, एस्तर को देखते साथ ही क्या हुआ? The king extended his scepter. अपने राजदंड को बढ़ाया और बोला कि बोल, तेरी क्या इच्छा है? Even half the kingdom I will give to you. प्रियो, जब हम उपवास और प्रार्थना करेंगे ना, जो हमारे लिए असंभव है वो हमारे लिए संभव हो जाएगा. मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या असंभव संभव हुआ. आपको मालूम है क्या हुआ? उसके बाद एक और डिक्री निकली. और क्या हुआ? कि यहूदी, क्योंकि पुरानी डिक्री को कैंसिल नहीं किया जा सकता था, a new decree was issued कि the people of God will protect themselves. Now, Esther chapter 8 verse 16 I am going to read for you. For the Jews it was a time of happiness and gladness and honor. Okay, अगर हम इसको NASB न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, for Jews it was a time of light. वहां पर क्या था? उनके लिए ज्योति थी. क्यों? क्योंकि अंधकार का समय उनके लिए खत्म हो गया. Darkness was replaced by light. Because before that there was a decree which was destined for their destruction.
पर अब क्या है, परमेश्वर एक ज्योति को लेके आया उनके लिए। और खाली ज्योति नहीं लेके आया, एक होप नहीं लेके आया, लेकिन देखिए, पता नहीं आप लोगों ने इसको पढ़ा है कि नहीं। आई विल रीड चैप्टर 8 वर्स 17। इसका पार्ट बी मैं पढ़ रहा हूं। एंड मेनी पीपल ऑफ अदर नेशंस बिकेम ज्यूज बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द ज्यूज सीज देम। क्या हुआ? कई लोग क्या बन गए? यहूदी बन गए, क्योंकि परमेश्वर का, यहूदियों का ऐसा भय उनके ऊपर आया। व्हाट हैपेंड? जो उनके विरोधी थे वो उनमें मिल गए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आई कैन नॉट स्पीक। जो हमारे विरोध में है वो हमारे साथ मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ऐसा भय भेजेगा उनके अंदर कि वो क्या करेंगे? हमारे साथ आकर मिल जाएंगे। ओके, खत्म नहीं है स्टोरी। चैप्टर 9 वर्स 3। And all the nobles of the province, the satraps, the governors, the king's administrators helped the Jews because the fear of Mordecai has seized them. कौन? सुनिए, who were the people? The nobles, the satraps, the governors and the king's administrators. सारे सरकारी अधिकारी कहां पलट गए? यहूदियों का मदद करने के लिए। क्या लिखा है? They all help the Jews. वो कहां गए? यहूदियों की मदद करने के लिए। कौन? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिनको आज्ञा थी कि वो मार दो। अब क्या हुआ? मोर्दके को एक ऐसा स्थान मिल गया है और मोर्दके की एक ऐसी रेपुटेशन हो गई है। क्या हुआ? सारे लोग क्या हो गए? मोर्दके का भय उनके ऊपर आ गया और वो क्या करने लग गए? यहूदियों की मदद करने लगे। What I want to say is, officials will come and help you. Why? जब परमेश्वर आपकी मदद करने आ जाए तो आपके विरोध में कौन हो सकता है? If God is for us, who can stand against us? There was an hour of darkness. एक अंधकार का समय था. Yes, there was an hour of darkness. But what happened? Through fasting and prayer, that hour of darkness brought light. और खाली ज्योति नहीं आई, क्या हुआ? जो विरोधी थे वो साथ में मिल गए, जो अधिकारी थे वो मदद के लिए आ गए। और क्या हुआ? एक बड़ी विजय परमेश्वर के लोगों को मिली। हमें कैसे विजय मिलेगी? No other way. There is no physical way. There is only one way, and that is spiritual. And that is through fasting and prayer. जब हम उपवास और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर परिस्थितियों को ऐसा हमारे लिए बदल देगा कि जो हमारे विरोध में वो हमारे साथ आकर खड़े होंगे। And remember, if there is an hour of darkness in your life, then remember that is only temporary, because the light is coming. Dawn is coming. सुबह आ रही है, जहाँ अंधकार फिर हावी नहीं होगा। ज्योति चमकेगी और परिस्थितियाँ हमारी बदलेंगी, हमारी यूनिवर्सिटी की भी बदलेंगी। हम इस बात को विश्वास करते हैं। कैसे? जब हम सब मिलके उपवास और प्रार्थना करेंगे। आपको मालूम है, जब मिस्र में लोग गुलामी में थे, उन्होंने चिल्ला के परमेश्वर को पुकारा, और बाइबल में ऐसा लिखा है, गॉड केम डाउन। If you will read the Bible, it says परमेश्वर नीचे उतर आया। When we will fast and pray, what will happen? परमेश्वर स्वर्ग से कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। किसके लिए? अपने लोगों की मदद करने के लिए। आप कहोगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या आप उस इंटेंसिटी से चिल्ला रहे हो? Are you crying with that intensity कि वो उसको कंपेल कर दे कि वो स्वर्ग छोड़ के नीचे आ जाए? अभी वो इंटेंसिटी हमारे अंदर नहीं है। We need that intensity to pray and cry, Abba Father, come and help us. प्रभु आए हमारी मदद करें। क्या हम आंसू से प्रार्थना कर रहे हैं?
क्या हम गिड़गिड़ा रहे हैं? अभी हम बहुत कंफर्ट जोन में हैं शायद। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर हमें ऐसी सिचुएशन में ले आए कि हमें गिड़गिड़ाना पड़ जाए। इट्स टाइम नाउ कि हम अभी समय को पहचाने और अभी से उपवास और प्रार्थना में लग जाएं। कहीं ऐसा ना हो जैसे इजरायलियों को लिटरली रोना पड़ा, हमें भी रोना पड़े। सो इट्स टाइम दैट वी कम ऑन आवर नीज, वी फास्ट एंड वी प्रे, बिकॉज जब ऐसा होगा द ज्यूज, द ड्रेड ऑफ याहवे केम अपॉन द लैंड ऑफ बेबीलोन। यहोवा परमेश्वर का भय उस स्थान पर आ गया। जब हम उपवास प्रार्थना करेंगे हमारे परमेश्वर का भय इस स्थान पर आ जाएगा। बिकॉज when he comes, no more I fight, the Lord fights my battles. मेरा परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ता है। We'll read quickly 1 Samuel chapter 17 verse 47. पहला सैमुएल 17:47। All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and he will give all of you into our hands. For the battle is the Lord's and he will give you into my hand. कौन बोल रहा है ये? डेविड। दाऊद कह रहा है कि संग्राम किसका है? मेरा नहीं है, संग्राम है यहोवा का, और वो तुमको मेरे हाथों में देगा, मैं नहीं लड़ूंगा। ओके, अनदर एग्जाम्पल 2 Chronicles chapter 20 मैं पढ़ दे रहा हूं, वर्स 15। He said, listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, अपने प्रॉफिट को भेजा, और क्या कहा? सुनो, युद्ध तुम्हारा नहीं, किसका है? यहोवा का है। The battle is the Lord's. प्रियो, the battle is never ours. It never was, it never is, and it never will be. लड़ाई कभी ना तो हमारी थी, ना हमारी है, ना हमारी कभी होगी। हमारे लिए कौन लड़ेगा? हमारा परमेश्वर। वो कब लड़ेगा? जब हम उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आपको मालूम है उपवास का सिंपल ट्रांसलेशन क्या है? व्हाट इज फास्टिंग? हम्बलिंग। In one word, if you describe fasting, it is when you humble yourself before your God. जब अपने आप को दीन कर लेते हो ना अपने परमेश्वर के सामने, तुरंत आ जाता है। When we humble, God comes and helps us. Fasting is nothing more. जब हम अपने खाने को छोड़ते ना, हम क्या करते हैं? अपने शरीर को त्यागते हैं। Not in a फिजिकल सेंस, बट जो शरीर की अभिलाषा हैं उनको डिनाई करना सीखते हैं। क्यों? दैट मेक्स अस हम्बल। वो हमें दीन बनाती हैं। मैं कहता हूं खाली खाने का उपवास मत करिए, अपनी इच्छाओं का उपवास करिए। फास्ट ऑफ योर डिजायर्स। से नो टू फोन। बेस्ट फास्टिंग आई कैन से, बेटर देन अ फास्टिंग ऑफ फूड। Say no to television. Say no to wrong words from your mouth. Say no to wrong desires, wrong thoughts. A greater fasting. Because what will? ये आपको कष्ट देगा. These things will cause you great pain. And pain humbles. कष्ट इंसान को दीन बनाता है. And when we humble, our God comes and He helps us.